آج کی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ 1 پوائنٹ پرسپیکٹیو گریڈ کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے السٹریشن تیار کر سکتے ہیں. پرسپیکٹیو گریڈ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کی سیٹنگ کیسے چینج کرنی ہے, یا اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے, اس سے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیل ہم اس سے پہلے والی 3 مختلف کلاسز میں دیکھ چکے ہیں. میں ان کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو آج کی کلاس میں آپ کو پرسپیکٹیو گریڈ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی, بلکہ وہ السٹریشن بنانا سکھاؤں گی جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھی. میں ہوں آپ کی ٹیچر مبینہ باری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفرٹ فار سکسیس. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹ کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو میں یہاں سے پرسپیکٹیو گریڈ ٹول پہ کلک کروں تو میری گریڈ ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد میں اس کی سیٹنگ تھوڑی چینج کر لیتی ہوں تاکہ میں اس پہ فردر ورکنگ کر سکوں. تو میں یہاں سے اس کے ہاریزونٹل پلین کو ڈریگ کر کے تھوڑا نیچے لے آتی ہوں, تقریباً اتنا, اور اس کے بعد میں اس کے رائٹ پلین کو بھی ڈریگ کر کے یہاں تک لے آؤں گی. میں اس کو تقریباً اس طرح سے سیٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس پہ السٹریشن بنانا شروع کروں گی. کیونکہ اس کلاس میں ہم 1 پوائنٹ پرسپیکٹیو گریڈ یوز کر رہے ہیں, تو اس میں ہمارے پاس 2 پلین ہوتے ہیں, لیفٹ پلین اور ہاریزونٹل پلین. اس میں رائٹ پلین نہیں ہوتا. لیفٹ گریڈ کو ایکٹیو کروں گی. ایکٹیو کرنے کے بعد یہاں سے ریکٹینگل ٹول لوں گی اور یہاں سے 3 باکسز کے اکارڈنگ میں یہاں پر ایک ریکٹینگل ڈرا کر رہی ہوں. آپ سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں. ریکٹینگل ڈرا کرنے کے بعد اب یہاں پہ مجھے بالکل اسٹریٹ ریکٹینگل ڈرا کرنا ہے, پرسپیکٹیو میں نہیں, اپنی بلڈنگ کا فرنٹ دکھانے کے لیے. تو میں یہاں پر نو ایکٹیو گریڈ پہ کلک کر لوں گی. نو ایکٹیو گریڈ پہ کلک کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ بالکل اسٹریٹ ریکٹینگل ڈرا کروں گی. اتنے ایریا میں نے بالکل اسٹریٹ ریکٹینگل ڈرا کر لیا ہے. اس کے اوپر اور نیچے والے کارنر اس گریڈ سے میچ ہونے چاہیے. اور اس کے بعد میں پرسپیکٹیو گریڈ ٹول کو سلیکٹ کروں گی. سلیکٹ کرنے کے بعد اور اس پلین کو میں یہاں سے موو کر لیتی ہوں, اور موو کر کے میں اس ریکٹینگل کے ساتھ جوائن کر لوں گی. اس کے بعد نیکسٹ مجھے یہاں پہ ڈرا کرنا ہے, تو میں دوبارہ سے ریکٹینگل ٹول لوں گی. ریکٹینگل ٹول لے کر اب میں یہاں سے لیفٹ گریڈ کو ایکٹیو کروں گی. لیفٹ گریڈ کو ایکٹیو کرنے کے بعد اب میں یہاں سے ایک ریکٹینگل ڈرا کر لیتی ہوں. میں تقریباً اتنے ایریا میں یہ ریکٹینگل ڈرا کروں گی. اس کے بعد پرسپیکٹیو سلیکشن ٹول لے کر میں اس کو بالکل اس ریکٹینگل کے ساتھ سیٹ کر دیتی ہوں. تو میں اس کے کارنر کو یہاں پہ جوائن کر کے سیٹ کر لوں گی. اوپر اور نیچے والے ایریا کو ڈرا کرنے کے لیے میں ہاریزونٹل پلین کو ایکٹیو کروں گی اور ریکٹینگل ٹول لوں گی. ریکٹینگل ٹول لینے کے بعد اب میں یہاں سے ایک ریکٹینگل ڈرا کر کے بالکل اس کے ایکول لے آتی ہوں, اور یہ اوپر کا ایریا میرا ڈرا ہو گیا. اس کے بعد میں یہاں نیچے والے ایریا پہ ڈرا کر کے یہاں پہ بھی ایک ریکٹینگل لگا لیتی ہوں. اس کے بعد یہ کارنر مجھے ٹھیک سے میچ نہیں لگ رہا, تو میں یہاں سے اس کو زوم کر لوں گی اور زوم کر کے اس کو اچھے سے میچ کرنے کی کوشش کروں گی. تو یہاں میں نے کچھ کلر اور کچھ پیٹرن پہلے سے سرچ کر کے رکھے ہیں تاکہ میں اس میں فل کر سکوں اور ہمارا ٹائم سیو ہو سکے. تو میں یہاں سے اس ریکٹینگل کو سلیکٹ کروں گی. آئی ڈراپر ٹول لے کر اس پہ کلک کروں گی تو یہ پیٹرن اس میں فل ہو گیا. پیٹرن سرچ کرنے کے لیے آپ سوئچز لائبریری پہ آئیں. سوئچز لائبریری پہ آ کر آپ یہاں سے سوئچز لائبریری مینیو پہ کلک کریں, اور اس کے بعد یہاں سے پیٹرن آپشن پہ آ کر یہاں سے آپ پیٹرن سرچ کر سکتے ہیں. جب میں نے یہ پیٹرن سرچ کیا تھا تو کافی ڈارک کلر میں تھا. میں نے اس کے کلر کو تھوڑا سا لائٹ کیا ہے ری کلر آرٹ ورک کے آپشن کو یوز کرتے ہوئے. اس ریکٹینگل کو سلیکٹ کروں گی جو اوپر ایز اے سیلنگ یوز ہو رہا ہے, اور اس کے اندر میں آئی ڈراپر ٹول کی مدد سے یہ والا پیٹرن فل کر دیتی ہوں. اس کے بعد مجھے فلور میں پیٹرن ایڈ کرنا ہے, تو میں اس کو سلیکٹ کروں گی. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس میں جو پیٹرن میں ایڈ کرنے والی ہوں وہ تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ہے, تو میں اس کی ایک کاپی لے کر اس میں ایڈ کروں گی. ہمارے تمام پیٹرن اوپیک نہیں ہوتے, کچھ پیٹرن ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, تو جب میں اس کے پیچھے کوئی اور کلر بیک گراؤنڈ لوں گی تو اس کا کلر اس سے افیکٹ ہوگا. تو میں یہاں گرے شیڈ میں ہی اس کو رکھنا چاہ رہی ہوں, تو میں اس کی کاپی لے لیتی ہوں. میں کنٹرول C کروں گی, اس کے بعد کنٹرول F کر کے اس کی کاپی اسی کے اوپر پیسٹ کر دیتی ہوں. اب یہ میری اوپر والی کاپی سلیکٹ ہے. اس کے بعد یہاں سے میں اس پہ کلک کروں گی تو یہ پیٹرن اس میں فل ہو گیا. اب میں ہٹا کے آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھیں اس کے نیچے یہ کاپی موجود ہے.
मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब आप देखें यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लगाऊंगी और इसके अंदर मैं रेड कलर फिल कर देती हूँ। और रेड कलर फिल करने के बाद मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी, अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे सेंड टू बैक करूं तो आप देखें इस पैटर्न में से रेड कलर नजर आ रहा है, जबकि मैं ऐसा नहीं चाह रही। मैं चाह रही हूं कि इसके अंदर से ग्रे कलर ही नजर आए, क्योंकि ये पैटर्न मेरा ट्रांसपेरेंट है, ये पैटर्न मेरा मुकम्मल ओपेक नहीं है। तो इसलिए मैंने इसके पीछे इस रेक्टेंगल की कॉपी लेके कॉपी में फिल किया है। तो मैं कंट्रोल Z करके इसको वापस यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी और इसमें ये वाला ग्रे कलर फिल कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी और इसमें ये वाला ग्रे कलर फिल कर दूंगी। इतना एरिया डिजाइन करने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं वो भी कर देती हूँ। बॉर्डर ऐड करने के लिए मैं यहाँ से पहले इस एरिया में बॉर्डर ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे इस दीवार की विड्थ शो करनी है। अगर मैं पर्सपेक्टिव अंदाज में इसको ऐड करूंगी तो वो इसका हिस्सा लगेगा, इससे सेपरेट नहीं लगेगा, जबकि मुझे सेपरेट इसकी विड्थ शो करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ से नो एक्टिव ग्रिड पे क्लिक करके अपनी ग्रिड को अनएक्टिव कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। जितनी चौड़ाई मैंने यहाँ पे छोड़ी है अपने आर्ट बोर्ड में उतना रेक्टेंगल मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। ये शॉर्टकट की फिलहाल मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देती हूँ, बाद में वापस यहीं पे सेट कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। अब इस रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। इतनी ही चौड़ाई का रेक्टेंगल मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसकी कॉपी ऑल्ट के साथ ले लूंगी। मैं इसको शिफ्ट के साथ रोटेट कर देती हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट अंदाज में रोटेट करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख दूंगी और यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इसकी विड्थ को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, बिल्कुल उतना जहां तक हमारा ये वाला रेक्टेंगल आ रहा है। मैं इसको इसके कॉर्नर पे सेट कर देती हूँ और यहाँ पे सेट करने के बाद अब मुझे इस तरफ जो रेक्टेंगल ऐड करना है वो पर्सपेक्टिव अंदाज में करूंगी। तो मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड को एक्टिव करके अपने लेफ्ट प्लेन को एक्टिव कर लेती हूँ और एक्टिव करने के बाद रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगी। इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी। तो ये पाथ फाइंडर पैनल मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। उसके बाद मैं इनको यूनाइट कर देती हूँ, तो अब ये एक शेप बन गए। उसके बाद मैं इनमें रेड कलर फिल कर दूंगी। मैं रेड कलर की थोड़ी सी डार्क शेड फिल करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर दूंगी और ओके कर दूंगी। नो एक्टिव ग्रिड पे क्लिक कर देती हूँ ताकि मैं अपने डोर और विंडोज पे वर्क कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ करके रखी हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ये जस्ट 4 सिंपल रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल ये है जिसे मैं एज ए विंडो यूज करूंगी। अगर मैं इसमें ऐसे ही ग्रेडियंट फिल करूंगी तो हर एक में सेपरेट ग्रेडियंट फिल होगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इन सारों में कंबाइन ही ग्रेडियंट फिल हो। मैं जो ग्रेडियंट फिल करना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे पहले उसको प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ से इसमें ग्रे ग्रेडियंट पहले फिल कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ से ग्रेडियंट एनोटेटर को ओपन कर लूंगी। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से इसको ड्रैग कर देती हूँ। ड्रैग करने के बाद मैं इस एरिया पे क्लिक करके इसमें सायान कलर फिल कर दूंगी और यहाँ से इस सायान कलर को थोड़ा सा लाइट कर लेती हूँ। मुझे कुछ इस किस्म का ग्रेडियंट इनमें फिल करना है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेकर इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए हर एक रेक्टेंगल में सेपरेट ग्रेडियंट फिल हुआ है, जबकि मुझे इनमें कंबाइन ग्रेडियंट फिल करना है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूं। तो इनमें कंबाइन ग्रेडियंट फिल करने के लिए पहले मैं इनको एक शेप बना लेती हूं। एक शेप बनाने के लिए मैं इन चारों को सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर कंपाउंड पाथ पे आकर मेक पे क्लिक कर दूंगी। उसके बाद डोर में ये जो 4 रेक्टेंगल मैंने यूज करने हैं मैं इनको लूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर कंपाउंड पाथ पे आकर मेक पे क्लिक करके मैं इनको भी एक शेप बना लेती हूँ और इनमें ग्रेडियंट फिल कर दूंगी। मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी और इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करके इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन करूंगी। राइट क्लिक करके मैं इसको ग्रुप कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, इसके ऊपर रखूंगी और इन दोनों को सिलेक्ट करके
हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन कर दूंगी और उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर देती हूँ। अब ये डोर और विंडो मैंने डिजाइन कर ली है। अब मैं पहले इसे इस तरफ प्लेस करूंगी। इस तरफ प्लेस करने के लिए मैं यहीं पे इसको सेट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे भी इसको सेट कर सकती हूँ। तो पहले मैं इनकी एक कॉपी ले लेती हूँ। मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लूंगी और ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लेती हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे डोर का हैंडल बनाना है, तो डोर का हैंडल बनाने के लिए मैं यहाँ से इलिप्स टूल लूंगी और एक छोटा सा इलिप्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। इलिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं आई ड्रॉपर टूल लेकर ये वाला ग्रेडियंट इसमें फिल करूंगी और यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ से रिवर्स ग्रेडियंट कर दूंगी ताकि बाहर की तरफ हमारा डार्क एरिया आ जाए। तो मैं इस तरह से इस हैंडल को डिजाइन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूंगी और इसको जूम करके यहाँ पे सेट करूंगी। के साथ इसके साइज को छोटा करूंगी और यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको भी ग्रुप कर देती हूँ। अपने पेज को नॉर्मल कर दूंगी। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इसी की कॉपी ले लूंगी क्योंकि इसके साथ हैंडल मौजूद है और ऑल्ट के साथ इसको यहाँ पे रख देती हूँ और इस रेक्टेंगल को भी डिलीट कर देती हूँ। ये भी तो मैं इनको भी डिलीट कर देती हूँ। इसको यहाँ पे रखूंगी और उसके बाद मैं इनको भी ग्रुप कर लेती हूँ। ग्रुप करने के बाद अब मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख दूंगी और यहाँ पे सेट करने के बाद अब मैं इस तरफ इस डोर और विंडो को सेट करूंगी। अब मुझे यहाँ पर एक विंडो ड्रॉ करनी है जो कि अंदर से खाली हो, उसके पीछे से बैकग्राउंड नजर आ रहा हो और उसके अलावा उसमें से दीवार की विड्थ भी शो हो रही हो। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। मैं ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से माइनस फ्रंट पे क्लिक करूं तो ये एरिया मेरा खाली हो चुका है। खाली करने के बाद अब इसको मैं वापस यहाँ पे रखूंगी, वापस यहाँ पे एग्जैक्टली सेट करूंगी। सेट करने के बाद अब मुझे इसके इर्द गिर्द बॉर्डर चाहिए और उतना एरिया खाली चाहिए जितना मैंने खाली किया है। तो मैं आउटलाइन लगाकर फिलिंग नन करके भी ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि आउटलाइन कम से कम इस्तेमाल करें या बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। तो इसलिए मैं यहाँ पे आउटलाइन इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं ऑफसेट पाथ के ऑप्शन को यूज करते हुए इसके इर्द गिर्द एक पाथ क्रिएट करूंगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ऑफसेट पाथ के ऑप्शन पे आऊंगी। तो हम जल्द ही ऑफसेट पाथ के ऑप्शन को भी देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ 15 पिक्सल का ऑफसेट पाथ लगाऊंगी। आप प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं कि इसके बाहर कितना बॉर्डर आया है। अगर आपको कम ज्यादा लगे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी। ओके करने के बाद मैं ऊपर वाली शेप के कलर को चेंज करके दिखाऊं तो पीछे मुकम्मल मेरी शेप क्रिएट हुई है जितनी मैंने पाथ लगाई थी। मैं इसको सिलेक्ट करके अगर उठा के दिखाऊं तो आप देखें ये पूरी शेप यहाँ पे मौजूद है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से नॉर्मल सिलेक्शन टूल लूंगी, इस शेप को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ पीछे वाली शेप को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से माइनस फ्रंट पे क्लिक करूं तो ये वाली शेप भी अंदर से कट गई और मैं प्रॉपर्टी पैनल को यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। और उसके बाद मुझे डेप्थ को शो करने के लिए इसके अंदर एक रेक्टेंगल लगाना है। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा लेती हूँ। आई ड्रॉपर टूल लेकर इसमें ये वाला डार्क कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके इसे सेंड टू बैक कर दूंगी। हाउस डिजाइन करने के बाद अब यहाँ पे मुझे इसकी ऊंचाई शो करनी है। पहले मैं नो एक्टिव ग्रिड पे क्लिक करके इस तरफ का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। क्योंकि ये वाला रेक्टेंगल मेरा स्ट्रेट होगा तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें आई ड्रॉपर टूल की मदद से ये वाला डार्क कलर फिल कर दूंगी। तो अब मैं लेफ्ट ग्रिड को एक्टिव कर लेती हूँ, रेक्टेंगल टूल लूंगी और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ।
अब ये हमारा हाउस डिजाइन हो चुका है। उसके बाद हम रोड डिजाइन करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक्टिव करूंगी। हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक्टिव करने के बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी। रेक्टेंगल टूल लेकर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगाऊंगी। मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेकर इसको सेट करूंगी। व्यू मेन्यू में आऊंगी। पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आकर यहाँ से डिफाइंड ग्रिड पे आऊंगी। तो यहाँ पे ग्रिड एवरी 30 पिक्सल की बजाय मैं इनकी ग्रिड के साइज को बड़ा कर लेती हूँ ताकि मुझे रोड के अंदर की डिटेल ऐड करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ से इसको 50 पिक्सल कर लेती हूँ और यहाँ से ओके कर दूंगी। ये वाली लाइन मेरी बिल्कुल सेंटर में आ रही है। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ इस तरह से, और इसके अंदर व्हाइट कलर फिल कर दूंगी। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लूंगी, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लूंगी। उसके बाद कंट्रोल डी करके इसकी मल्टीपल कॉपीज ले लूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे फुटपाथ ड्रॉ करूंगी। फुटपाथ ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल ऐड करना शुरू करूंगी। तो मैं आई ड्रॉपर टूल लेकर इसमें ये वाला कलर फिल कर देती हूँ। उसके बाद पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से इसको इस तरफ ड्रैग करूंगी। ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लेती हूँ। अब कॉपी लेने के बाद अब मुझे इसमें टॉयल पैटर्न ऐड करना है। मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन ही एक्टिव है तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल मजीद ऐड करूंगी और आई ड्रॉपर टूल की मदद से इसमें ये वाला लाइट कलर फिल कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। मैं यहाँ से इसकी कॉपी यहाँ पर ले लूंगी और उसके बाद कंट्रोल डी करके मैं मजीद इसकी कॉपीज ले लूंगी। मैं हैंड टूल की मदद से अपनी दूसरी साइड को यहाँ पे सामने ले आती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी यहाँ पे लूंगी और कंट्रोल डी करके मजीद कॉपीज यहाँ पे ले लूंगी और उसके बाद अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से पाथ फाइंडर पैनल को क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद इन एक्स्ट्रा बॉक्सेस को भी यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब हमारी पर्सपेक्टिव इलस्ट्रेशन रेडी है। अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं इस पे मजीद थोड़ी सी वर्किंग करूंगी। वो वर्किंग इस पर्सपेक्टिव का हिस्सा नहीं है। तो मैं यहाँ से सिंबल पैनल को ओपन कर लेती हूँ। कुछ सिंबल मैंने पहले से सर्च करके रखे हैं जो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी। तो मैं यहाँ पे ये एक ट्री ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं इस ट्री को ड्रैग कर लेती हूँ। उसके अलावा मैं ये फ्लावर पॉट ऐड करना चाह रही हूँ। उसके अलावा ये गिटार ऐड करना चाह रही हूँ। उसके अलावा ये कुछ रॉक्स हैं जो यहाँ पे ऐड करूंगी। उसके अलावा कुछ क्लाउड भी हैं तो क्लाउड मैं बाद में यहाँ पे लेके आऊंगी। तो मैं इस गिटार को उठाकर इस कॉर्नर में यहाँ पे रख दूंगी मजीद खूबसूरती के लिए। उसके अलावा मैं इस फ्लावर पॉट को यहाँ पे सेट कर दूंगी। उसके बाद मैं इस ट्री की तरफ आ जाती हूँ और इसके साइज को शिफ्ट के साथ थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। बड़ा करने के बाद अब मुझे इसमें ट्री का ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए तो मैं उसके लिए यहाँ से पहले इसको अनलिंक कर लेती हूँ और अनलिंक करने के बाद अब मैं इसमें एडिटिंग कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल लेकर इस ट्री को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब इनको मैं अपने आर्ट वर्क में यूज करूंगी तो मैं यहाँ से नॉर्मल सिलेक्शन टूल की मदद से इसको उठाकर यहाँ पर सेट कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस ट्रीज की कुछ कॉपीज ले लूंगी और उनको सेट कर दूंगी। और अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे सेंड टू बैक कर दूंगी। अब एक ट्री मैं इस विंडो के बैक में ऐड करूंगी ताकि कुछ इस तरह से लुक आए कि इसके पीछे से हमें ट्री नजर आ रहा है। तो मैं इसको उठाकर ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लूंगी और इसके साइज को शिफ्ट के साथ बड़ा करूंगी। अब इसको मैंने बैक पे सेंड कर दिया है। मुझे इन डोर की डायरेक्शन भी थोड़ी सी चेंज करनी है। मुझे इस हैंडल को अंदर की तरफ करना है और इस हैंडल को इस तरफ करना है। इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको फ्लिप कर देती हूँ। इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। अब मैं इन रॉक्स को सेट करूंगी।
मैं ग्रिड को ऑन करके यहाँ पे नो एक्टिव ग्रिड पे क्लिक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पीछे बैकग्राउंड लगाऊंगी, लेकिन बैकग्राउंड लगाने से पहले मैं इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगी ताकि हमें अरेंज करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगी और कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट कर लूंगी। जब मैंने सबको सिलेक्ट किया तो इसमें मौजूद तमाम आर्टवर्क सिलेक्ट हो गए। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस सिलेक्शन से बाहर करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो शिफ्ट प्रेस करके इस पे क्लिक करूंगी, इस पे क्लिक करूंगी तो ये सिलेक्शन से बाहर हो गए। उसके बाद मुझे इन रॉक को भी इस सिलेक्शन से बाहर करना है, तो मैं इन तमाम रॉक्स पे क्लिक करके इस सिलेक्शन से बाहर कर देती हूँ। अब इन रॉक्स के अलावा मेरा तमाम आर्टवर्क सिलेक्ट है और मैं राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से नो एक्टिव ग्रिड पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद अगर मैं चाह रही हूँ कि इसी कलर का रेक्टेंगल आए मेरे पास, तो पहले मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसे एक दफा सिलेक्ट करूँ तो इसी की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएंगी। इसमें एक वही ग्रीन कलर आ गया है और यहाँ पे नो फिल शो हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी और कलर में भी ड्रॉ करते हैं तो आई ड्रॉपर की मदद से बाद में भी कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेकर इतने एरिया में रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी जहां पे मुझे ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है, जहां पे मेरी रोड खत्म हो रही है। तो मैं इस तरह से ये ग्रीन कलर यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। इनको मैंने ग्रुप में इसलिए नहीं शामिल किया था कि मुझे इनको इस ग्रीन रेक्टेंगल के पीछे रखना है, बाकी तमाम ऑब्जेक्ट को मुझे इस ग्रीन रेक्टेंगल के आगे रखना है। तो मैं शिफ्ट के साथ इन सबको सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर इन्हें सेंड टू बैक कर देती हूँ। अब ये रॉक इसके बैक में चली गई। मैं मजीद इनको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, इसको डिलीट कर दूंगी। डिलीट करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर रखूंगी और यहाँ पे रखने के बाद अब मैं इसको ड्रैग करूंगी। मैं इसे पूरे आर्टबोर्ड के साइज में ड्रैग करूंगी और ड्रैग करने के बाद मैं इस पे राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे सेंड टू बैक कर देती हूँ। अब ये रेक्टेंगल इसके बैक में चला गया। तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक करके ग्रेडियंट एनोटेटर को ओपन करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ ताकि इसके शेड में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए, कुछ इस तरह से। मैं सिंपल पैनल पे आकर यहाँ से कुछ क्लाउड भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। अब ये कंप्लीट आर्टवर्क मैंने अच्छे से डिजाइन कर लिया है। अब इसमें मजीद खूबसूरती ऐड करने के लिए मैं इसमें एक गाड़ी भी ऐड कर देती हूँ रोड में। तो उसके लिए मैं एक PNG इमेज इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो ये हमारी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड को यूज करते हुए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव इलस्ट्रेशन बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।